Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकंड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड अर्लियर वी हैड टॉक्ड अबाउट द फिलोसफिकल एंड सोशो कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ गाइडेंस. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, वीडियो इज़ अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप जाके उस वीडियो को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ गाइडेंस. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर बीएड, एमएड, सीटेट, टेट, रीड, DSSSB, KSSB, UGC नेट एंड GRF. एंड एट द एंड मैं आल्सो पोस्ट करता हूं MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. सही शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है गाइडेंस की, इट एक्सप्लेन्स द साइंटिफिक बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. दैट मीन्स इट एक्सप्लेन्स हाउ डज ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली थिंक, फील, लर्न, बिहेव एंड डेवलप. एंड अर्लियर फाउंडेशन जो कि हमने डिस्कस की, like philosophical foundations of guidance and socio-cultural foundations of guidance, in which we had discussed जो philosophical foundation है guidance की, it explains what should be the aim of human life and education. while जो sociological foundation, socio-cultural foundations of guidance थी, that explains how society and culture affect the individual. but ये जो psychological foundation है guidance की, it answers how does individuals actually think, feel, learn, behave and develop. So ये जो psychological foundation है guidance की, it provides the scientific understanding of the inner man. Inner man in the sense we can understand it as the internal psychological world of the person, including human beings' thoughts, emotions, motives, intelligence, aptitudes and personality. So psychology जो है it study these psychological aspects scientifically. And we had also talked about कि जो philosophy है that gives aims that tell us what humans should become, why values are important, what values are important, and why what education should achieve. जिसका जो main aim था that was self realization as well as moral development. while जो sociology थी that we had also discussed कि जो sociology थी that provides the context जो कि explain करती है society, family, culture and economic conditions को, जो कि study करती है overall environment around the individual. while ये जो psychology है it provides us necessary tools and techniques, or we can say it provides us practical methods to understand the students like observation, testing, counseling, interviews, behavior analysis. so ये जो tools हैं, ये जो techniques हैं, these techniques make guidance a scientific process जो कि हमें help करते हैं in understanding individual behavior, learning and personality. So it helps us to understand why students behave differently, how they learn, why they succeed or fail, or how personality develops. ठीक है? I hope it is clear to you. First of all, talking about the main psychological foundations of guidance. First जो है that is the study of individual differences. Individual differences जो है this is the most fundamental psychological principles of guidance. That means कि जो two individuals, two human beings हैं, they are different, they are not exactly alike. So students या जो individuals हैं they differ in their intelligence, उनके पास different intelligence, personality, interests, attitudes, emotional nature and learning speed होती है. So two individuals जो है they are not alike in their mental makeup. सो उनका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट. दैट मीन्स उनका जो थिंकिंग स्टाइल है दैट इज़ डिफरेंट, उनकी जो इमोशनल रिएक्शंस हैं दैट आर डिफरेंट, या उनकी जो एबिलिटीज़, बिहेवियर पैटर्न्स हैं दैट आर आल्सो डिफरेंट. इवन टू ट्विन्स जो है दे डिफर साइकोलॉजिकली.
सो साइकोलॉजी जो है इट हेल्प अस टू मेजर दीज वेरिएशंस, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती है टू मेजर दीज वेरिएशंस और डिफरेंसेस। लाइक इंटेलिजेंस जो है इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर द मेंटल एबिलिटी, लाइक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ या अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली इंटरेस्ट जो है उनको ऑल्सो मेजर किया जाता है, इन विच जो काउंसलर्स हैं दे मतलब दे नो what a student likes or enjoys, like for example a student is interested in art, science, music or sports. Similarly in aptitude, natural potential जो है of student वो measure किया जाता है for success in a specific एरिया। लाइक फॉर एग्जांपल वेदर एक स्टूडेंट जो है उसके पास म्यूज़िकल एप्टीट्यूड है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड है या टीचिंग एप्टीट्यूड है। सिमिलरली पर्सनैलिटी जो है उसको ऑल्सो मेजर किया जाता है, दैट इज़ द टोटल और ओवरऑल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इमोशंस एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट। सो जो गाइडेंस है इट एग्जिस्ट बिकॉज इंडिविजुअल्स जो है दे डिफर। सो अगर सभी स्टूडेंट्स जो है वो सेम होते हैं, उनके लिए सेम टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, उनके लिए सेम कैरियर रहता, उनके लिए सेम कैरियर गाइडेंस जो थी दैट वुड वर्क। बट जो स्टूडेंट्स हैं दे आर डिफरेंट इन देयर एबिलिटीज़, इंटरेस्ट्स, एप्टीट्यूड्स, एंड जो गाइडेंस है उसको ऑल्सो प्रोवाइड किया जाता है इंडिविजुअली, दैट इज़ ऑल्सो इंडिविजुअलाइज्ड। सो अगर एक सेम स्टैंडर्ड रहता, सेम स्टैंडर्ड ऑफ गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन रहती, दैट वुड सफाइस। सो विदाउट डिफरेंसेस एक ही मेथड जो है वो काम करता फॉर एवरीवन। बट रियल क्लासरूम्स जो होते हैं दैट आर डाइवर्स, उनमें स्टूडेंट जो होते हैं दैट आर डिफरेंट, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़, इंटरेस्ट्स, एप्टीट्यूड्स होते हैं, सो देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है टू मैप दीज डिफरेंसेस। एस्पेशली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो डन की जाती है जिसमें मेजर किया जाता है आईक्यू, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट्स ऑफ स्टूडेंट साइंटिफिकली, विच मेक श्योर दैट कि जो राइट मैन हो ही विल बी इन द राइट जॉब। जो कि हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट वोकेशनल गाइडेंस का प्रिंसिपल देखने को मिलता था। दैट मीन्स कि जो कैरियर है एक इंडिविजुअल का वो मैच करना चाहे उसकी एबिलिटी, एप्टीट्यूड्स और इंटरेस्ट्स के साथ। सो अगर एक स्टूडेंट लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जो है उसके पास आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है और अगर वो मतलब बाई चांस मैकेनिकल वर्क में घुसता है, ही मे स्ट्रगल इन दैट वर्क। सो अगर वो इंटरेस्ट रखता है इन आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड दैन उसके लिए वो जॉब बेटर रहेगा रादर देन जस्ट एंगेजिंग इन मैकेनिकल वर्क। ठीक, नेक्स्ट जो है सेकंड जो है दैट इज़ दी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर होता है हर एक पर्सन का दैट इज़ गोल डायरेक्टेड एंड ड्राइवन बाय नीड्स। दैट मीन्स कि जो ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं दैट डज नॉट हैपन रैंडमली। हर एक एक्शन, ह्यूमन एक्शन जो होती है उसके पीछे एक पर्पस होता है। मतलब जो ह्यूमन बींग्स एक्शन करते हैं वो एक एक्शन परफॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ हिज नीड एज वेल एज हिज फॉर हिज मोटिवेशन। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट मेहनत करता है बिकॉज ही वांट्स टू सक्सीड, ही सीक्स अप्रूवल और ही फियर्स फेलियर। सो हर एक एक्शन जो है उसके पीछे एक पर्पस, नीड और मोटिवेशन होती है। And you may have heard about the Maslow's hierarchy which is associated with Abraham Maslow, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास ऑल्सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स होती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो बिहेवियर है इट इज़ अ रेस्पॉन्स टू अनमेट नीड्स। दैट मीन्स कि जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स होती है इफ़ दे आर एन अनसेटिस्फाइड तो उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो पीपल है वो एक्ट करते हैं टू फुलफिल दोज नीड्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो हंग्री है, वो फोकस नहीं कर पाएगा अपनी स्टडीज़ पे, सो टू फुलफिल द नीड ऑफ हंगर वो स्टूडेंट जो है वो फूड खाएगा। सो दिस इज़ हाउ जो ह्यूमन बींग्स हैं दे सेटिस्फाई देयर अनफुलफिल्ड नीड्स थ्रू एक्शन। एंड काउंसलर्स जो है वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल जो कि मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को।
लुक एट दिस इमेज, ये जो इमेज है इट शोज मॉस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि हमें कोर मोटिवेशनल थ्योरी देखने को मिलते हैं विद इन द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ गाइडेंस। ये जो नीड्स हायरार्की है ये प्रोवाइड करती है काउंसलर को एक तरीके का सिस्टमेटिक रोड मैप थ्रू भी जो काउंसलर्स हैं वो एवेलुएट करते हैं स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को। क्लाइंट के वो एवेलुएट करते हैं स्टूडेंट या क्लाइंट की डेवलपमेंटल रेडीनेस को, बिहेवियर या पर्सनल पोटेंशियल को। और एक काउंसलर जो है वो सक्सेसफुली एड्रेस नहीं कर सकता है हायर स्टेप्स और लेवल्स को, लाइक सेल्फ एस्टीम दैट इज़ द कैरियर चॉइस और क्रिएटिव पोटेंशियल दैट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अगर एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करता है विद द बेसिक स्टेप्स लाइक लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। सो बिफोर एड्रेसिंग हायर लेवल गोल्स, जो काउंसलर है वो मस्ट एड्रेस करना चाहे पहले लोअर लेवल गोल्स। सो जो काउंसलर है वो आइडेंटिफाई करना चाहे व्हाट मोटिवेट्स द स्टूडेंट, बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेट होते हैं डिफरेंटली। लाइक बहुत कई स्टूडेंट्स जो है दे वांट सिक्योरिटी, कई स्टूडेंट्स जो है दे नीड फ्रेंडशिप, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं दे नीड रिकॉग्निशन और अचीवमेंट। सो गाइडेंस जो है ये तभी इफ़ेक्टिव बनती है जब मोटिवेशन जो है उसको समझता है काउंसलर। लाइक फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स जो है दे हैव नीड फॉर सिक्योरिटी, दे सीक सेफ्टी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। सिमिलरली कई स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव नीड फॉर सोशल बिलोंगिंगनेस, दे नीड फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस, ग्रुप आइडेंटिटी एक्स्ट्रा। Similarly, कई students जो है they have need of self actualization, which is the highest level of growth. They want to become one's best version. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंसेस जो है वो यूज़ की जाती है। लाइक पर्सनल गाइडेंस जो है इसको यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड द इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट। वोकेशनल गाइडेंस जो है इसको यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड द कैरियर मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। सिमिलरली एजुकेशनल गाइडेंस जो है उसको यूज़ किया जाता है टू गाइड स्टूडेंट्स इन देयर कैरियर विच हेल्प स्टूडेंट्स टू चूज़ देयर सब्जेक्ट्स। ठीक। द थर्ड जो है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। इंटेलिजेंस जो है इट मीन्स ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली एंड थिंक रैशनली। दैट मीन्स कि जो इंटेलिजेंस है इट हेल्प इंडिविजुअल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, थिंक लॉजिकली एंड अडेप्ट इफेक्टिवली। थ्रू भी जो इंडिविजुअल्स हैं दे एक्ट पर्पसफुली, उनका जो बिहेवियर होता है उसको एक डायरेक्शन मिलती है, दे प्लान, दे मेक देयर गोल्स। इसके अलावा दे आल्सो थिंक रैशनली, वो यूज़ करते हैं अपनी लॉजिक रीजनिंग को इंस्टेड ऑफ इम्पल्सिव रिएक्शंस। ठीक। सिमिलरली एप्टीट्यूड जो है इट मीन्स स्पेशल फिटनेस, और वी कैन से इट इज़ ए नेचुरल स्टेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट फॉर ए पर्टिकुलर फील्ड दैट हैज़ ए पोटेंशियल फॉर सक्सेस। लाइक ये जो एप्टीट्यूड है ये प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। It is not a current achievement of the student but his future capability. Like for example, अगर एक स्टूडेंट जो है उसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, ही मे बी वेल इन इंजीनियरिंग। सिमिलरली अगर एक स्टूडेंट जो है उसकी उसका म्यूज़िकल एप्टीट्यूड है, ही मे बी वेल इन म्यूज़िक एज वेल एज अगर एक स्टूडेंट जो है उसका क्लरिकल एप्टीट्यूड है, ही मे बी वेल इन ऑफिस वर्क। एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो यूज़ की जाती है अंडर साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस। एंड ये जो टेस्ट्स हैं इनको एडमिनिस्टर किया जाता है यूनिफॉर्मली, इनको यूज़ किया जाता है यूनिफॉर्मली ऑन ऑल स्टूडेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल IQ टेस्ट्स हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट्स हैं या इंटरेस्ट इन्वेंटरीज हैं। स्पेशली डार्ट टेस्ट जो है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो यूज़ की जाते हैं, जो कि मेजर करते हैं डिफरेंट एप्टीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट लाइक देयर वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी एंड मैकेनिकल रीजनिंग। इसके अलावा एजुकेशनल गाइडेंस जो है इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू चूज़ दियर सब्जेक्ट, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स को चूज़ कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू दियर ओन एप्टीट्यूड्स, इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट्स। ठीक। ना फोर्थ जो है दैट इज़ दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
हमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज देखने को मिलते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं पर्सनैलिटी को डिफरेंटली. लुक एट दिस इमेज. ये जो इमेज है इट शोज बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स मॉडल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ओशन मॉडल. एंड इन दिस इमेज जो स्टेबल है इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी. And within psychological foundations of guidance, different personality theories जो है they provide scientific basis for understanding individual differences. And counselors जो है they use this trait model as a diagnostic and predictive tool to guide students towards optimal educational and vocational pathways. एनीवेज डिफरेंट थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं पर्सनैलिटी को डिफरेंटली. लाइक साइको एनालिटिक थ्योरी जो है इट इज़ एसोसिएटेड विथ सिगमेंट फ्रूड विच फोकसेस ऑन अनकॉन्शियस माइंड इंस्टिंक्ट्स एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. सिमिलरली ट्रेट थ्योरी जो है इट सजेस्ट दैट कि जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्टेबल ट्रेट्स लाइक हॉनेस्टी इंट्रोवर्जन एग्रेशन. सिमिलरली टाइप थ्योरी जो है वो क्लासीफाई करते हैं पर्सनैलिटी को इन 2 टाइप्स इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. सिमिलरली ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है उसका जो फोकस है दैट वाज ऑन ग्रोथ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कंसेप्ट. एंड एडजस्टमेंट जो है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर. लाइक जो स्टूडेंट्स जिनकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होते हैं वो मतलब बेटर एडजस्ट कर पाते हैं टू दियर स्कूल्स पीयर स्ट्रेस एंड चैलेंजेस. एंड स्टूडेंट्स जिनके पास बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है मतलब उनकी हेल्थी पर्सनैलिटी होती है they have well emotional control, they have confidence, they have social adjustment as well as realistic thinking. While कई स्टूडेंट्स जो होते हैं they remain mal adjusted in their environment, they have improper emotional or social adjustment. Like for example they show extreme aggression, they show withdrawal and inferiority complex. So टू करेक्ट दिस स्मॉल एडजस्टमेंट करेक्टिव सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है जिसमें गाइडेंस जो है वो प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू ओवरकम इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स एंड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. ठीक. नेक्स्ट आर लर्निंग थ्योरीज. गाइडेंस जो है इट इज़ एसेंशियली ए लर्निंग प्रोसेस. दैट मीन्स कि जो गाइडेंस है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू लर्न न्यू बिहेवियर्स बेटर एटीट्यूड्स एंड कोपिंग स्किल्स. एंड देयर आर डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज लाइक बिहेवियरिज्म जो है विच इज़ एसोसिएटेड विद B.F. स्किनर एंड इवान पेवलो. एंड बिहेवियरिज्म जो है बिलीव्स दैट कि जो बिहेवियर है उसको हम सीखते हैं थ्रू कंडीशनिंग. Similarly, constructivism theory जो है learning की which is associated with Jean Piaget and Lev Vygotsky, which suggest that कि जो students हैं वो actively construct करते हैं knowledge को through experiences. Similarly, social learning theory जो है which is associated with Albert Bandura, which suggest that कि जो people हैं वो सीखते हैं by observing others by through imitation as well as through modeling. सो ये जो थ्योरीज डिफरेंट थ्योरीज़ हैं ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू एक्वायर न्यू हैबिट्स एंड एप्टीट्यूड्स. लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं मतलब वो इनकलकेट करते हैं वो एक्ट करते हैं न्यू स्टडी हैबिट्स डिसिप्लिन सोशल एटीट्यूड्स एंड इमोशनल रेस्पॉन्सेस एज वेल एज जो स्टूडेंट्स हैं दे आल्सो some students also acquire bad habits or negative attitudes like they have fear of some subjects, they are involved in procrastination and they have low confidence. So guidance जो है that plays a very important role in relearning or in behavior modification जो कि act करते हैं as a reinforcement and काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है सच स्टूडेंट्स हु आर माल एडजस्टेड हु हैव बैड हैबिट्स और नेगेटिव एप्टीट्यूड्स so that they can replace their bad habits as well as they can make their behavior in a positive way. ठीक. I hope ये सब आपको clear हुआ होगा. Now if we summarize, we had learned that in psychological foundations of
guidance we had talked about the individual differences, that means कि जो individuals होते हैं they are different in their abilities, interests, एप्टीट्यूड्स, और जो गाइडेंस है वो ऑल्सो इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, जो कि प्रोवाइड की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट्स, एप्टीट्यूड्स, एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट. देन वी हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि यूज़ किए जाते हैं इन साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट सिलेक्शन एज वेल एज इन देयर कैरियर प्लानिंग. And we had also talked about motivation, role of motivation, which explains the reason behind the student's behavior. Then we had also talked about कि जो psychological foundation of guidance है, it also help students in developing attitudes and interests, जो कि guide करते हैं students को towards their career success, and उनकी जो career success है वो तभी increase होती है when their work matches with their interests. And इसके अलावा we had talked about the role of psychological foundations of guidance in students mental health, in which जो guidance है that also support students emotional stability, that help them to manage their stress, as well as that also help students to adjust. ठीक. And here are some important tips that you can also remember from your exam point of view. जो guidance है it also changes according to the developmental stages of the child, and psychology जो है that plays a very important role in linking developmental stages of child, which was basically given by Jean Piaget, to the guidance needs. So इसमें जो students हैं वो लिंक करते हैं, मतलब उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनको लिंक किया जाता है टू दी गाइडेंस नीड्स. एंड जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रंस होते हैं वो थिंक करते हैं डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस. सो दैट इज़ वाई जो प्राइमरी लेवल ऑफ गाइडेंस है वो डिफरेंट हमें देखने को मिलती है फ्रॉम एडोलसेंट गाइडेंस बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी. सो गाइडेंस जो है ये मस्ट मैच करनी चाहिए दिस मैच्योरिटी लेवल. ठीक. एंड देयर आर अदर टूल्स जो कि यूज़ की जाते हैं इन गाइडेंस दैट यू कैन रिमेंबर, लाइक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स या साइकोलॉजिकल टेस्ट्स. ये जो टेस्ट्स रिकॉर्ड्स हैं दीज आर आल्सो बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. लाइक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है इट कीप द कंप्लीट स्टूडेंट रिकॉर्ड ओवर टाइम, या जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है इट इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ important students important behavior. या self theory जो है Carl Rogers की, which was given by Carl Rogers, in which he talked about the real self versus ideal self. Real self जो है that is a person which who currently sees themselves, and ideal self जो है it is a person in which जो person है he knows how they wish to be in their life, वो क्या बनना चाहते हैं in their life. सो जो गाइडेंस है दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ. सो काउंसलिंग जो है दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द डिफरेंस और गैप बिटवीन करंट पर्सनैलिटी एंड डिजायर्ड पर्सनैलिटी, जो कि इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट की सेल्फ एस्टीम को, एडजस्टमेंट को, एज वेल एज उनकी कॉन्फिडेंस को. एंड हियर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट नोट कि जो साइकोलॉजी है इट टर्न आर्ट इनटू साइंस. दैट मीन्स विदाउट साइकोलॉजी जो गाइडेंस है इट वुड डिपेंड ओनली ऑन गेस वर्क, इंट्यूशन एंड पर्सनल ओपिनियन, वाइल जो साइकोलॉजी है दैट मेक्स गाइडेंस मोर ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड मेजरेबल एज वेल एज साइंटिफिक. ठीक है. आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. Now at conclusion we had learned that कि जो psychological foundations and guidance की it explains the individual behavior, learning, motivation, intelligence, aptitude, personality and mental health, जो कि provide करती है scientific basis for effective educational, vocational and personal guidance. So guys that is it for today. I hope आपको अच्छे से clear हुआ होगा. अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू Discipline Talks channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.